Yes, good morning to all. In the previous lecture, we have covered uh, the variants of Turing machine. That means Turing machine can be of different types. Means multi-tape can be possible, multi-head can be possible, multi-track can be possible, and then stay option can be possible. And one type of solution can be possible that we receive the input in a one tape and copy the input to the another tape and then process as usual as the standard Turing machine. So these are various variants that we can utilize, we can use, or we can create a Turing machine in that way. So all these variants are the hypothetical thing, but usually we will use standard Turing machine for construction purpose, right? So if you have any confusion or doubt regarding this variants of Turing machine, then please let me know. Variants में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कल कंप्लीट हो गया था वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन. किसी को डाउट तो नहीं किसी तरह का वेरिएंट्स में? राखी, रोशनी, वेरिएंट्स कंप्लीट हो गया था. एंड व्हाट अबाउट द चर्च ट्यूरिंग थीसिस? इट इज कंप्लीटेड इन योर लेक्चर. ओके, वेरिएंट्स तो कंप्लीट हो गया था नंदिनी. Variants of Turing machine. Okay, good. So today I will cover Church Turing thesis or the Church hypothesis. It is a short note type of thing, and after that we will start in detail the construction part of Turing machine, right? So just see the Turing thesis or Church Turing thesis or Church hypothesis. Okay. These are different variants I have already covered. And now, today I am going to start Church Turing thesis. So this is a new topic, and this is important topic for short note type of thing. So just see here and see the importance of this Church Turing thesis. So this is the topic I think this is the first topic for you that you can say this is new for you. That is, the name of the topic is Church Turing thesis or Church hypothesis. Before this topic, आपने इस तरह से चीजें पढ़ी होंगी, चर्च थ्योरम, है ना, चर्च कॉरेलरी, चर्च लेमा, ये आपने पढ़ा था, बट आपने कभी भी थीसिस को नहीं पढ़ा था. या आपसे अगर मैं कहूं कि चर्च ट्यूरिंग थीसिस इसका नाम है और चर्च हाइपोथेसिस इसका नाम है, तो आपने ये नहीं पढ़ा था. So just before going to start a church Turing thesis or church hypothesis, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा जो चर्च ट्यूरिंग थीसिस में है. एक्चुअली ये है क्या? Why it is called church hypothesis? Why it is not called as a church Turing church theorem or the church corollary or church lemma, right? So it is called hypothesis or the Turing thesis because Alonzo Church gave some idea about the Turing machine before invention of the Turing machine. उन्होंने ट्यूरिंग मशीन इन्वेंट होने से पहले एक थ्योरेटिकली एक आइडिया दिया, हाइपोथेटिकली एक आइडिया दिया, राइट? So that's why it is not the mathematical proof. At that time, they did not provide any mathematical proof, right? So they provide the idea that every algorithmically computable function is Turing machine computable. So they gave some statement hypothetically. But at last, when the Turing machine designed or invented, at that time, his idea was correct. That's why this is called church hypothesis or church thesis. Are you getting this point? वो अपनी जब पीएचडी की थीसिस कर रहे थे, एलेंजो चर्च नाम था उनका, तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि कोई भी प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय ह्यूमन बीइंग और ए ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग or by computer
can be solved by the Turing machine, right? और ऐसे कह सकते हैं, if we have algorithmic procedure to solve any problem by human being or by computer or by group of human beings, the same problem can be solved by the Turing machine. This is only the statement given by the Alan-Joe Church, right? So, but at that time, that statement was the hypothetical statement. He wrote that statement in his PhD thesis, right? बट जब हम एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन प्रपोज की तो उनका स्टेटमेंट सही हुआ, बट इट डिड नॉट हैव एनी मैथमेटिकल प्रूफ. तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, चर्च हाइपोथेसिस या चर्च ट्यूरिंग थीसिस. अगर इसका मैथमेटिकल प्रूफ होता तो चर्च क्या बोलते हम इसको, चर्च लेमा बोलते या चर्च रूल बोलते या चर्च थ्योरम बोलते, कुछ भी बोलते, राइट? So why, if anyone asks you why it is called thesis or hypothesis, so this is the answer of this question. Now, there are some interpretation of the thesis are, means they provide two interpretation, you can say, or these are two interpretation as per the thesis of Alan-Joe Church. The interpretation is, first interpretation is, every algorithmically computable function is Turing machine computable, right? Another point, algorithmically का मतलब क्या हुआ, means any problem that can be solved step by step manner, and that problem can be solved by the Turing machine. अगर मैं आपसे कहता हूँ divide by zero problem, that problem is not solved by algorithmically, so this problem cannot be solved by the Turing machine. Any problem that is solved by the human being or by computer or by group of human beings can be solved by the Turing machine. So Turing machine is the most powerful machine or the automaton, right? Another interpretation is, a function is computable if and only if it can be solved by the Turing machine. Means if any function is computable, इसको अगर हम otherwise बोलें तो इस चीज को क्या बोल सकते हैं, if any function is computable, that means it can be solved by the Turing machine. So the next last point is, these are two interpretations basically, and as I told you that why it is not called a theorem, it is called a thesis or the hypothesis, because we cannot prove this with a counter example, right? That's why it is called the thesis or hypothesis. Now just see the statement of the Church-Turing thesis. Turing machine is a general model of computation, is simply to say that any algorithm, you can note down this definition, क्योंकि ये आपको बुक में नहीं मिलेगी, कहीं भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, पिक ले सकते हैं आप अपने पास, और ये शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखने के लिए आ सकता है चर्च ट्यूरिंग थीसिस, तो आपको लिखना होगा, ठीक है, क्वेश्चन. So Turing machine is a general model of computation, is simply to say that algorithmic procedure that can be carried out at all, means by the human being, by the team of human, or by the computer, can be carried out by a Turing machine. So this is the simple statement given by Alan-Joe Church in his thesis, right? This statement was first formulated by Alan-Joe Church in 1930. It was usually referred as the Church thesis or the Church hypothesis or the Church-Turing thesis. So simply, if anyone asks you the Church-Turing thesis or Church hypothesis, that means the Church gave an idea about the Turing machine, about the computability of the Turing machine. So they gave the definition, or they gave the precise definition of the Turing machine, that Turing machine is a general model of computation. That means simply to say that algorithmic procedure, any algorithmic procedure that can be carried out by a human or team of human or by the computer can be carried out by the Turing machine. So this is the statement first given by Alan-Joe Church in 1930, means before invention of the Turing machine. That's why it has its own importance, right? So this is referred as the Church-Turing thesis. Now, what is the meaning of algorithmic procedure, है ना? तो इसको आप देख सकते हो, a mathematical precise statement. ये क्या था जो इन्होंने दिया था? It is a mathematical precise statement because we do not have any precise definition of algorithmic procedure.
therefore it is not the something that we can prove. इसमें उन्होंने आइडिया दिया hypothetically, but it is not he did not provide us the mathematical proof. That's why it is not a theorem. So this is the simple short note about the Church-Turing thesis, Church hypothesis. अगर आप ओल्ड ईयर्स के पेपर देखते हैं तो ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें ये किसी न किसी तरीके से नहीं पूछा गया हो. तो आपको इसमें याद रखना है कि Church-Turing थीसिस किस ईयर में प्रपोज हुई, है ना, और एलन जो चर्च ने कब इसको प्रपोज किया और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या थी. So these are two interpretation and statement. You should learn this statement because anyone can ask you the Church-Turing thesis in short. So in this case, just you have to write only these 4-5 lines. Means Turing machine is a general model of computation. That means any algorithmic procedure that can be carried out by human being or by computer can be carried out by the Turing machine. So this is the simple statement given by the एलन जो चर्च. अब इसमें कोई भी डाउट हो एलन जो चर्च ट्यूरिंग थीसिस में तो आप मुझे पूछ सकते हैं प्लीज. चर्च ट्यूरिंग थीसिस में इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. So our theoretical 2 topics are covered. First one is First one is variants of Turing machine. We have covered yesterday. In this case, Turing machine with stay option और जो पॉसिबिलिटी हो सकती है तो मैंने आपको 7 बताई थी. अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो हमें 5 तैयार रखनी है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, अब तो ऑनलाइन एग्जाम होता है तो आपको इसमें सारे याद रखने पड़ेंगे. स्पेशली फॉर द यू शुड लर्न द ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ ईच वेरिएंट और यू शुड नो अबाउट द मॉडल डायग्राम ऑफ ट्रांजिशन, मॉडल डायग्राम ऑफ ईच ट्यूरिंग मशीन, राइट. So these are the stay option. This is two-way finite infinite machine. Multi-tape मैंने बताया था इसका ट्रांजिशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से because it is something different, right? That's why in this case we have used k here because number of tapes are k here. And multi-track, in this situation the same head can be used to access multiple tracks. Okay? यानी कल करा दिया था बेटा हमने मल्टी ये वाला. तो रोशनी, ऐश्वर्या, ये तो हो गया है बेटा, ये तो मैंने कल करा दिया वेरिएंट्स आपको, आपके सेक्शन में कल हुआ, या तो आपने क्लास नहीं ली होगी. अदर्स लोग, बाकी के लोग बेटा बताइए प्लीज. अदर्स प्लीज रिप्लाई. ये तो मैंने करा दिया है. शशांक, कल कराया था ना वेरिएंट्स, मैंने कल कराया था. वेरिएंट्स नहीं हुआ. नंदिनी, रोशनी, चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बता देता हूं. तो आज हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? चर्च ट्यूरिंग थीसिस समझ में आया? चर्च ट्यूरिंग थीसिस में सिर्फ आपको एक पैराग्राफ याद रखना है और आपको बताना है उसके बारे में कि ये आप इसमें एक पैराग्राफ में ये भी बता सकते हो कि इसको हम थ्योरम क्यों नहीं कहते, है ना. ठीक है ना. चलिए कोई बात नहीं रोशनी, मैं आज दोबारा से बता देता हूँ, जितना भी हुआ है मैं दोबारा बता देता हूँ. तो वेरिएंट्स का मतलब क्या है? मैंने आपसे कल बात की थी. वेरिएंट्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज को अलग अलग तरीके से कैसे और बनाया जा सकता है. मींस बेस हमारा एक है और उसमें चेंजेस क्या हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल चेंजेस इन द बेस मॉडल, है ना. अगर हमने कल एग्जांपल शायद आपसे शेयर किया होगा, एक कार का एग्जांपल किया. जैसे हम बात करते हैं हुंडई के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं. हुंडई के वेरिएंट्स का मतलब क्या हुआ, या मारुति के वेरिएंट्स का मतलब क्या हुआ, या मारुति में स्विफ्ट के वेरिएंट्स का मतलब क्या हुआ कि उसमें हम बेस, हमारा इंजन वही है, बेस वही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज किया. एक में हमने ग्लास ऑटोमेटिक किया, मिरर ऑटोमेटिक किया, तो वो एक अलग वेरिएंट हो गया. एक में हमने कुछ डिग्गी को ऑटोमेटिक किया कि रिमोट से ओपन हो जाती है, तो वो एक अलग वेरिएंट हो गया. स्टार्ट ऑटोमेटिक हो जाए तो एक अलग वेरिएंट हो गया. व्हील में क्या कर सकते हैं कि एक में हमारे एलॉय व्हील आ गए तो एक अलग वेरिएंट हो गया. नॉर्मल व्हील आ गया तो वो नॉर्मल वेरिएंट हो गया, है ना. तो कहने का मतलब ये हुआ वी कैन चेंज द डिजाइन ऑफ बेस मॉडल बाय डिफरेंट वे. So all these ways of change the design are referred as the variant. Simple. तो हमारा ट्यूरिंग मशीन क्या थी? सिंपल एक मशीन है जिसमें 7 टपल हैं और हमारा ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होता है. किसी स्टेट पर आप होते हैं, कोई भी आप इनपुट रीड करते हैं कहां से,
कहाँ से रीड करते हैं? टेप से। ये टेप सिंबल है, टेप पर जो भी हमारे पास दिखेगा वो ये रीड करेगा, राइट। और उसके बाद आप एक नई स्टेट पर जाते हैं, फिर आप उसमें राइट करते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं? हेड की डायरेक्शन को लेफ्ट या राइट में इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। तो अल्टीमेटली आप क्या बताने वाले हो? आप मशीन को ये बताते हो कि राइट क्या करना है, रीड तो वो अपने आप करेगा ही करेगा जो सिंबल दिखेगा, राइट क्या करना है ये आप इंडिकेट करते हो उसको, और डायरेक्शन हेड की लेफ्ट होनी है या राइट होनी है ये भी कौन बताता है? आप बताते, राइट। सो एक वेरिएंट ये कहा, दिस इज द सिंपल स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन, राइट। अब दूसरी चीज क्या हुई कि पहला वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, जस्ट एक हाइपोथेटिकल है ये भी, वेरिएंट्स की बात अगर हम करें तो अगर हम इसमें देखें तो अभी तक हम लोगों ने क्या कहा कि जैसे इस ए को रीड करे, अगर आप इसका ट्रांजिशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? अगर लिखना चाहते हो तो ए को रीड करो और ब्लैंक राइट कर दो, उसके बाद आप आगे चले जाओ राइट, या आप क्या लिख सकते हो? ए को रीड किया, ए को करा ब्लैंक और आगे आप लेफ्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस ए को रीड करने के बाद एक ही जगह पर क्या हो गया? ब्लैंक हो गया। अब आपने लिखा राइट, क्योंकि पहला ऑप्शन है, पहले वाले में हम हमेशा राइट यूज करो, राइट यूज करोगे तो अब हमारा जो हेड है वो किसको रीड करेगा? ए को रीड करेगा। ये तो प्रोसेस होती है। फिर इस ए को रीड किया आपने, इस ए को रीड करके ये वाला लिखा कि ए को भी ब्लैंक करो और लेफ्ट आ जाओ, तो ये इस वाले को क्या कर देगा? ब्लैंक कर देगा, और हमारा हेड किधर आ जाएगा? दोबारा से लेफ्ट में आ जाएगा, राइट। तो अभी हमारी जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि है आफ्टर ट्रांजिशन हेड शुड मूव लेफ्ट और राइट, मतलब या तो उसको लेफ्ट में जाना पड़ेगा या राइट में जाना पड़ेगा, दैट इज इंस्ट्रक्टेड बाय यू, एज इज इंस्ट्रक्टेड बाय यू, राइट। लेकिन एक ऑप्शन क्या हो सकता है? मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे उसी पॉइंट पर रीड करना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो एक वेरिएंट हम क्या बना सकते हैं इसमें कि हम हेड को स्टेशनरी बना दें, हेड को स्टे ऑप्शन दे दें। मींस अगर मैं कहता हूं इसको जस्ट हियर, अगर मैंने कहा कि आप किसी स्टेट पर हैं, कोई भी आपने टेप सिंबल से रीड किया, क्यू स्टेट पर आ गए, कोई भी सिंबल हमने राइट कर दिया और आपने कह दिया अब आपको स्टेट स्टेशनरी रहना है, मींस आप कहते हैं ए को रीड करो, इसको कर दीजिए ब्लैंक और अब आप रहिए एस, एस फॉर स्टेशनरी। एस यूज करते हैं कई सारी बुक में, इसको कैपिटल एन से भी यूज करते हैं, एन फॉर न्यूट्रल, बोथ आर द सेम, है ना। एस यूज करो या एन यूज करो एक ही बात है। सो इस दोनों का मतलब क्या है कि आपको हेड को लेफ्ट और राइट मूव नहीं कराना। दैट मीन इज दिस ए इज कन्वर्टेड इनटू बी, दैट इज ब्लैंक, ए को तो आपने चेंज कर दिया, तो अब ये हेड की जो पोजीशन होगी ये उसी पोजीशन में स्टे रहेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो दोबारा से हेड क्या रीड करेगा? बी, ठीक है। फिर बी को आप रीड करके कर देते हो ए, तो कभी भी हेड आगे मूवमेंट नहीं करेगा। तो अगर हम चाहें तो एक ऑप्शन ये है कि हम इसके बेस मॉडल में ये चेंज, ट्यूरिंग मशीन के स्टैंडर्ड मॉडल में ये चेंज कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल जो मैंने अभी समझाया आप इसमें देख सकते हो। आप Q1 स्टेट पर हो, ए को रीड कर रहे हो, ए इज कन्वर्टेड टू बी एंड नाउ यू इंस्ट्रक्ट हियर, दैट इज एस, मींस स्टे ऑप्शन इज देयर, right? So the case is, suppose you are in state Q1 reading A, so A is simply converted to B, you are reaching to state Q2, but here you can see the direction of head is on the same position। देखो आप इसी पोजीशन पे था, A आपका कन्वर्ट होके B हो गया, नाउ स्टेट भी आपकी चेंज हो गई, बट नाउ यू आर इन द सेम पोजीशन, मींस हेड इज नॉट मूव neither left nor right। so this may be the another variant of the Turing machine। अब हम दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं, इसकी अभी छोड़ दीजिए, टू बे इनफाइनाइट का। टू बे इनफाइनाइट इज नथिंग, इट इज जस्ट एज इन दिस सिचुएशन, दिस इज द टेप, और इस टेप पे हमने दोनों तरफ से क्या रखा है? इनफाइनाइट लेंथ रखा है। तो बाय डिफॉल्ट भी हम लोग इनफाइनाइट लेंथ की ही बात करते हैं, तो इसको बताने की जरूरत नहीं। जस्ट दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। इन दिस केस जस्ट सी हियर, दिस इज मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मल्टी टेप में? इसका मतलब ये है कि जैसे अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें ये हमारा टेप था, द टेप इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज ब्लॉक, और ये हमारा फाइनाइट कंट्रोल था। तो क्या हो सकता है कि हम एक टेप की जगह मल्टीपल टेप यूज करें? जब मल्टीपल टेप यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मल्टी हेड भी यूज होंगे, राइट। तो मल्टीपल टेप से हम रीड करें। अब अगर हम मल्टीपल टेप से रीड करेंगे, सपोज टेप 4 है, तो हमें ये बताना पड़ेगा फाइनाइट कंट्रोल को कि किस टेप से हमने किस चीज को रीड किया है, और उस एग्जीक्यूशन के बाद हमें ये बताना पड़ेगा कि किस फाइनाइट कंट्रोल को ये बताना पड़ेगा कि किस टेप पर जाके आपको राइट करना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब अगर आप यहाँ से कोई चीज रीड कर रहे हैं तो आप बताएंगे ना कि मैंने इस जगह से टेप नंबर 1 से रीड कर रहा हूँ,
अगर मैं 2 से रीड कर रहा हूं तो बताएंगे आप, और ट्रांजिशन के बाद आप राइट करते हो तो आपको बताना पड़ेगा टेप 2 पर जाके एक ही जगह बी राइट करो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सिमिलरली हाउ कैन, सो इन दिस वे हाउ कैन बी राइट द ट्रांजिशन फंक्शन? तो ये तो इसका मॉडल डायग्राम हो गया मल्टी टेप का। अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट मशीन यही है, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। तो इसका ट्रांजिशन डायग्राम बहुत आसानी से आप देख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं हम लोग ट्रांजिशन डायग्राम को और ट्रांजिशन फंक्शन को? जस्ट सी हियर, नाउ सपोज दिस इज द टेप नंबर 1, this is tape number 2, and this is tape number k. So just see here, just I am writing the transition function in general form. You can find here that is q to tau k. Tau k क्या बता रहा है? This is the input symbol from the tape. तो आपने लिखा tau 2, तो ये क्या बताएगा कि दूसरे वाले टेप से हम सिंबल को रीड कर रहे हैं। Are you getting this point? And after transition, you are in any state, and finally you write something. So in this case, you have to write that we are writing on tape number 2 or 3, whatever. Clear? Tape number 2 से अगर हम कोई चीज रीड कर रहे हैं तो tape number 2 पे ही तो राइट होगा। And then you have to mention the direction also, that you can move left, you are moving left or you are moving right. अब लेफ्ट और राइट मूव कर रहा है, कौन सा वाला टेप राइट करेगा? दैट इज 1 2 3 4, जो भी आपका टेप है। So simply to say, this is the way to represent the transition function for multi-tape Turing machine. So just you can see here Turing machine with k tapes and k head. Obviously, if k tapes are there, then obviously k heads will be there. Each tape has its own head for reading and writing. Initially, the tape appear on tape 1, and others start out blank, right? And then how can we perform the transition function? So just for that purpose, you can see this transition, nothing else. This is completely complete about the transition function and the model diagram for multi-tape Turing machine. This is the finite control. So is it clear? ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको मैंने अभी हमने किस किस चीज को कवर किया। First is Turing machine with stay option. We have covered it. Another one is multi-tape Turing machine. In this case, multiple tapes are there, and this is the transition function. Okay. Thank you, Unnati. And the same thing, this is multi-tape Turing machine. The same thing can be represented in this way also. That is the finite control or the control unit. This is tape 1 and this is tape 2. बाई डायरेक्शन साइन क्यों यूज किया है? क्योंकि आप यहाँ से रीड भी करोगे सिंबल, फिर राइट करते हो, राइट? क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं ना ट्रांजिशन, आपने बी को रीड किया, बी को आपने करा ब्लैंक, फिर डायरेक्शन हो गई राइट। तो दैट्स व्हाई बी को पहले रीड करेगा, फिर बी की जगह क्या राइट करेगा? ब्लैंक। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड बाई डायरेक्शनल साइन। ओके, नेक्स्ट वन इज द मल्टी ट्रैक। अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन may be multi-track if multiple tracks are there. So what does it mean? It means that in this scenario or in this situation, suppose you are in state Q0, so there are 2 tracks, suppose. So in this case, you can read 2 symbol at a time, right? And जैसे हम लोग Q0 स्टेट पर हैं, तो आपको क्या मिला? A मिला और इधर क्या मिला? B, suppose. इसका मतलब क्या हुआ? On the same point, you are reading more than 1 track. So this type Turing machine can also be possible. So in this situation, just you can write here, now you are suppose in state Q1 and you are writing here C and D. So this and after that the direction is right. So the meaning is clear that this is the simple way to represent this type of execution in the multi-track Turing machine. In this situation, you can see you are in state Q0 and you are reading A from track 1 and B from track 2. So you can represent it in this way. And after transition, this state is changed into Q1, and now you are writing CD. So obviously the C is written in place of A and B is written in place D is written in place of B. So simply this A is changed to C and this B is changed to D. And now the direction of head will be right. That means head will read to the next track. Are you getting this point? So this type of Turing machine can be possible. So this type of Turing machine will be multi-track Turing machine. You can see, you can find the transition of this multi-track Turing machine. So this is the simple figure
by which we can explain the multi-track Turing machine. Now you are in state Q1 with the help of the figure you can see here, and track 1 is you are reading B from track 1 and A from track 2. So just you can write here, this is the read option. And after the transition, or when the transition function is applied, in this case, this B is converted to C and this A is converted to D. So you can find, and you reach to the state Q2. So now you can find here, and the direction of head will be left. So in this situation, after completing this one, your head will be moved to the left direction and the state will be Q2, and this B is converted to C and A is converted to D. So you can find the result and the output here, right? So this is the simple way to represent the multi-track Turing machine. Any confusion beta? Any confusion? ये 3 मशीन आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, मल्टी टेप, मल्टी ट्रैक और दूसरा नॉन डिटर्मिनिस्टिक. Okay, thank you Unnati for prompt reply. Another one is the non-deterministic Turing machine. Actually, non-deterministic problems are undecidable problems or unsolvable problems, right? Or another type of possibility is, okay, thank you Rosni. So another type of possibility is simple, that on the same input, if this type of transitions are given to you, that you are in state suppose Q1. Now when you find A as a input, just it is instructed you that you should convert it, you should write B in place of A, and now the direction is L, left. And the same way, A you are reading from the tape and A is converted to C and the direction of head will be right. So if your head is state Q1, in this situation, whenever you find A as a input, then in this case, your machine will get confused that we have to write B in place of A, or we have to write C in place of A. So this type of situation is simply called as non-deterministic, right? हम लोगों ने DFA में भी पढ़ा था कि अगर हम एक स्टेट में हैं, हमें 1 मिला और यहाँ पर हमें A मिला, सपोज यहाँ लिखा है A रीड करके हम जाते हैं 2 पर, यहाँ जा रहे हैं 3 पर, सपोज यहाँ पर हम 0 पर है. तो अब अगर आप यहाँ पर हैं, हेड आपका, और आपको A रीड करता है, so in this case, how can you ensure that you should move this direction or this direction? So this is the simple case of confusion. So इस case में machine will get confused. So this is the simple case of non-determinism. राइट. तो अगर हमने DFA की बात की तो इस तरीके से लिखा, लेकिन अगर हम ट्यूरिंग मशीन की बात करते हैं तो इसी चीज को कैसे लिखा जाता है, रीड करके यहाँ कुछ राइट करोगे आप, उसके बाद यहाँ पर डायरेक्शन दोगे, है ना. इसी तरह से रीड करके आप कुछ राइट करोगे और यहाँ पर कोई डायरेक्शन दोगे. So if this type of situation is there, that is simple, this is the case of non-deterministic. Are you getting this point? So the transition function for non-deterministic case we already know in from the DFA or NFA कि अगर DFA का ट्रांजिशन फंक्शन हमारा क्या था, टाउ सिग्मा क्यू सिग्मा क्यू, राइट. तो अगर मैं DFA की बात कर रहा था, फिर मैंने आपसे NFA की बात की, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. So in this case, we can write the transition function for non-deterministic on the same way that 2 to the power q. All things are same, only this is the power set of q, right? So similarly, we can write the transition function for non-deterministic Turing machine on the same way. So you can find here the transition function for non-deterministic Turing machine as q tau to, अब ये हमारा पुराना देखिए ट्यूरिंग मशीन का है पूरा सब कुछ, क्या q tau cross L comma R. This is simply the direction or movement of the head. So simply just you can write this transition function on 2 to the power this one. This is the power set of this. So it will be the transition function similar as the NFA. Clear? कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को भी? तो आप डायग्राम और एग्जाम्पल ट्रांजिशन फंक्शन दोनों के थ्रू बता सकते हैं. क्लियर हो गया? इसमें कुछ याद करने का नहीं है, इसको कुछ नहीं याद करना आपको, जस्ट आपको बताना है कि नॉन डिटरमिनिस्टिक क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन बताना और डायग्राम बताना है, और सबको पता है कि नॉन डिटरमिनिस्टिक का मतलब क्या है. ठीक है, थैंक यू नंदिनी. अनदर एग्जांपल कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस वन आल्सो. Q1 स्टेट पर आपने क्या कहा, ए को रीड करो और क्या कर दो बी, और कहाँ चले जाओ Q2, और आपने क्या कहा ए को रीड करो और क्या करो सी कर दो और राइट चले जाओ. तो इस केस में क्या हुआ कि मशीन आप इस जगह पर आप थे, Q1 स्टेट पर हैं और ए रीड करना है,
तो इस केस में दो चॉइस आ गई आपके पास, क्या एक ही जगह बी कर सकते हो आप रीड करके, और आपने डायरेक्शन का लेफ्ट तो ये ब्लैंक को रीड करने लगेगा, और सेकंड चॉइस क्या हो गई, ए को सी करेगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगी राइट। So in this case, machine will get confused because there are two choices for the machine. So this type of situation is called undecidable situation or unsolvable situation. ठीक है? Another one is semi infinite tape. तो जब हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो उस केस में हम सेमी इनफाइनाइट ही कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, बट अगर हम स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन की बात करते हैं तो इट इज टू वे ट्यूरिंग मशीन, टू वे फाइनाइट ट्यूरिंग मशीन, दैट इज ये दोनों साइड में इसकी लेंथ जो होगी वो हमेशा क्या होगी, इनफाइनाइट इन लेंथ, राइट। तो सेमी इनफाइनाइट क्या हो सकता है कि हम एक साइड में इसकी लेंथ को क्या करें, बाउंड रखें, और दूसरी साइड में क्या करें, इनफाइनाइट रखें। दोनों तरफ इनफाइनाइट ना करके हम क्या करते हैं, एक साइड में इसको बाउंड कर लेते हैं और दूसरी साइड में इसको इनफाइनाइट करते हैं। सो द सेम प्रॉब्लम, सेम डायग्राम इज कॉल्ड द सेमी इनफाइनाइट ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, तो आप इसको कंपेयर करके दिखा सकते हो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन से। इन केस ऑफ द स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन इट इज इनफाइनाइट इन लेंथ बोथ द डायरेक्शन, बट इन केस ऑफ द सेमी इनफाइनाइट ट्यूरिंग मशीन इट इज इनफाइनाइट इन लेंथ ओनली राइट डायरेक्शन। फर्स्ट थिंग, अब इसका ट्रांजिशन फंक्शन क्या लिखा जाएगा, दिस इज सेम एज द स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन, सेम होगा बिल्कुल, कहीं कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि केवल डिफरेंस कहां पर है इसमें, ओनली द डिफरेंस इज इन, किसमें है, मॉडल रिप्रेजेंटेशन, टेप में रिप्रेजेंटेशन में अंतर है। सो दिस इज ओनली द डिफरेंस विद अनदर पॉसिबिलिटी इज, अनदर वेरिएंट मे बी द ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन। अभी हम लोग क्या करते हैं कि सपोज मैंने आपको टेप पर दिया ए बी, सपोज दिस इज ब्लैक, राइट। तो मैंने कहा आपसे ए को रीड करो, ए को बी रीड करके एक्स कर दो, आगे चले जाओ। फिर अब मैंने आपसे कहा बी को रीड करो और बाई कर दो और आगे जा जाओ, और जैसे ही ब्लैंक मिले तो ब्लैंक का ब्लैंक रखो और डायरेक्शन कर दो, कुछ भी कर दो, एस कर दो चाहे आर कर दो, और फाइनल स्टेट में आ जाओ आप। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस ए को कन्वर्ट कर दोगे क्या एक्स में, आप आगे आ जाओगे क्योंकि आपसे कहा गया है। दूसरा बाई को क्या, बी को क्या करोगे, बाई, आगे जाओगे, ब्लैंक पे आ जाओगे और फाइनल स्टेट में आ जाओगे। मींस यू विल फाइंड द आउटपुट एज, अगर मैं आपसे कहता हूँ टेप पर क्या लिखा है, तो यू कैन फाइंड एक्स बाई बी, राइट। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि पहले हम जो इनपुट है, अब आपको ये नहीं पता, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इनपुट क्या था, तो आपको यहाँ पर इनपुट नहीं देख पाएंगे बिकॉज इट इज ओवर रिटन हियर, राइट। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इनपुट को देखना है, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि जो भी हमारा इनपुट है उसको हम एक जगह पे रखें, एक टेप ऐसा एक्स्ट्रा लेके चलें जिस पर हमारा सारा इनपुट आ गया। ठीक है, और यहां से मैं क्या करूं, दूसरे टेप पर ये इनपुट को एज इट इज कॉपी करूं, दैट इज ए सॉरी बी एंड कैपिटल बी, ब्लैंक कर लिया। अब मैं अपना ट्रांजिशन यहीं पे परफॉर्म करूं, एक्स बाई और दिस इज बी, और फाइनल स्टेट में गया। तो इससे मेरी ट्यूरिंग मशीन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट अगर मैं कंपेयर करना चाहूं अपने पुराने वाले से, तो मैं देख सकता हूं कि ओरिजिनल मेरा इनपुट ये था, नाउ द ओरिजिनल इनपुट हैज टू बी कन्वर्ट इनटू एक्स बाई बी। तो इस वाले से तो मैं केवल रीड करूंगा और इस वाले पे रीड और राइट दोनों करूंगा। So this type of Turing machine can be possible, and this type of Turing machine can be considered as the offline Turing machine. इस पर आपने क्या किया ऑफलाइन, कि जो भी इनपुट था पूरी एक कॉपी करके आपने अलग रख लिया, और सारा एग्जीक्यूशन, ये पूरा मॉडल किसका है, ट्यूरिंग मशीन का, इसमें तो कहीं कोई चेंज है नहीं, बस एक टेप आपने एक्स्ट्रा यूज किया फॉर इनपुट द सिंबल। So this type of Turing machine can be considered as the offline Turing machine. So these are two operations you can see here. Copy input file to tape, पहला ऑप्शन इसका ये होगा, और उसके बाद क्या होगा, इसका नॉर्मल स्टैंडर्ड जो ट्यूरिंग मशीन जो काम करती है जिस करेगी, तो केवल इसका डिफरेंस क्या होगा, केवल ये कॉपी करेगी जो भी आपकी इनपुट फाइल है वो एक टेप पर, और उसके बाद नॉर्मल हमारा जो ऑपरेशन स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन का होगा, दैट विल बी द continue the computation as the standard Turing machine. So this may be the another type of variant, right? So this is simple representation for offline Turing machine. Okay, so now variants of Turing machine is clear to all. If anyone has any doubt, then please let me know. कोई भी डाउट हो किसी को भी तो बता सकते हो बेटा आप लोग, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? रोशनी, उन्नति, नंदिनी, मेघा, दीक्षा, क्लियर हुआ बेटा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? केशव, कुमुद,
आशुतोष, मयंक, विनीत, मानसी, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके, अब क्लियर हो गए। तो आज हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हुए, कौन कौन सा? वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन और दूसरा चर्च हाइपोथेसिस और चर्च ट्यूरिंग थीसिस। अब हम लोग थोड़ा टाइम ज्यादा देंगे किसमें? कंस्ट्रक्शन में, है ना? कंस्ट्रक्शन में देंगे, कुछ हम क्विज कराएंगे जिससे कि आपको आइडिया लगेगा किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें और जो भी डाउट है हम लोग क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।